I, Rohit Raj, behalf of the Achievement Public School, is here to attend this class of rational number of very first chapter of class 8 mathematics of RS Agarwal publications. So, I should start the video. Number first topic, rational number. Rational number, the number in the form of a by b, where a and b are integers and b is not equals to 0, is called rational numbers. It's a very important topic, and the only thing which I understand of rational number is that the denominator of any fraction or any number should not be equals to 0. Only this is the condition to satisfy what a number is a rational number or not. Example is given: 5 by 8, minus 3 by 14, 7 by minus 15, minus 6 by minus 11, etc. Any number is a rational number. Note my thing, any number is a rational number which do not have 0 as an denominator. Okay, moving ahead, there are two types of rational number: positive rational number and negative rational number. Positive rational number, a number is said to be positive rational number if its numerator and denominator are both positive or both negative. Okay, this means that the positive and the negative denominators, or we can say that both the numerator and the denominator should have same sign. Either minus or plus doesn't matter, but the numerator and denominator should have same sign, then they are said to be as positive rational number. Examples are given: 5 by 7 and minus 2 by 3. Negative rational number, a rational number is said to be negative if its numerator and denominator of opposite signs. Okay, in negative rational number we understand that the numerator and the denominator should have opposite signs, either plus or minus doesn't matter. Three properties of rational number, there are various properties. Now first property is, if a by b is a rational number and m is a non-zero integer. My friend, m is a non-zero integer. Non-zero integer means m can be any number, any whole number, any counting number excluding 0. m can be any number excluding 0. Okay, then a by b is a into m by b into m. Okay, in this property we understand that if a by b is a rational number and then we multiply any integer m with its numerator and denominator both, then the rational number doesn't changes. Okay, इट्स प्रॉपर्टी वंस कहता है कि अगर a बाई बी एक रेशनल नंबर है और a और b दोनों में किसी एक नंबर से ही इंटू किया जाए तो वो रेशनल नंबर चेंज नहीं होगा. ये प्रॉपर्टी नंबर 1 का कहना है. एग्जांपल देख लो. एग्जाम्पल में माइनस 3/4 लिया गया है रेशनल नंबर में. फिर देखिए, सबसे पहला बार उसको 2 से इंटू किया गया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में. फिर देखिए वही वो बराबर भी हुआ. और तीसरे में माइनस 3/4 को 3 से इंटू किया गया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर देखिए ये भी बराबर है. फिर 4 से इंटू किया गया, ऐसे सो ऑन. अगर सेम नंबर से इंटू करेंगे तो वो रेशनल नंबर चेंज नहीं होगा. प्रॉपर्टी नंबर 1 यही था. ओके, प्रॉपर्टी नंबर 2, वन मिनट. प्रॉपर्टी नंबर 1 में आपको एक बात याद रखना है कि ऐसे ही नंबर को इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कहते हैं. ठीक है, ऐसे ही नंबर्स को इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कहते हैं. चलिए, प्रॉपर्टी नंबर 2 में, इफ़ a by b इज अ रेशनल नंबर एंड m इज अ कॉमन डिविजर of a and b, then a by b is a divided by m by b divided by m. ओके, ये प्रॉपर्टी नंबर 1 का कन्वर्स है, बस उसका उल्टा. आप प्रॉपर्टी नंबर 1 में पढ़े थे कि a by b रेशनल नंबर है और अगर सेम नंबर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में इंटू करते हैं तो वो चेंज नहीं होगा. सिमिलरली ये भी है कि a by b एक रेशनल नंबर है और अगर उसे किसी एक नंबर, देखिए वही है m है, अगर उससे डिवाइड करते हैं, पिछले बार क्या पढ़ा था कि मल्टीप्लाई करते हैं दोनों ऊपर नीचे, इस बार डिवाइड भी करते हैं तो भी नंबर आपका चेंज नहीं होता है. एग्जाम्पल में देखिए, माइनस 32/40 था, इसको टोटल 8 से डिवाइड किया गया ऊपर और नीचे, तो फिर ये किसके बराबर आ गया, -4/5 पर. ये दोनों नंबर आपस में इक्वल होगा. ठीक है, ये प्रॉपर्टी नंबर 2 का कहना है. अगला टॉपिक है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ रेशनल नंबर. स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? रेशनल नंबर a by b is said to be in स्टैंडर्ड फॉर्म if a and b are integers having no common divisors other than 1 and b is positive. ओके, स्टैंडर्ड फॉर्म का फॉर्मूला ये कहता है कि एक रेशनल नंबर a by b को स्टैंडर्ड फॉर्म में तभी कहा जाएगा जब उन दोनों का कोई भी कॉमन डिविजन ना हो 1 को छोड़कर. ठीक है, और हाँ, दूसरी बात, जो उसका डिनोमिनेटर है, यहाँ मार्क कर लीजिए, जो डिनोमिनेटर b है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, तभी वो नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा. एग्जाम्पल, 3/-4 अगर लिख दिया जाए, 3/-4, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? नहीं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगा. 3/-4 का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? नीचे वाला डिनोमिनेटर पॉजिटिव होना चाहिए. तो आप प्रॉपर्टी नंबर 1 से आप लगा सकते हैं, अगर हम 3 को इंटू कर दें -1 से और -4 को भी इंटू कर दें -1 से, तो क्या ये बदलेगा? नहीं बदलेगा. प्रॉपर्टी नंबर 1 में अभी आप पढ़े हैं कि सेम नंबर से इंटू करते हैं तो ये नहीं बदलता है. तो ये क्या बन जाएगा? -3/4. अब ये हुआ स्टैंडर्ड फॉर्म में, क्योंकि
ये स्टैंडर्ड फॉर्म का फॉर्मूला ही यही है कि नीचे वाला डिनोमिनेटर पॉजिटिव होना चाहिए और कोई कॉमन डिवीज़र नहीं होना चाहिए। देख लीजिए -3/4 का कोई कॉमन डिवीज़र नहीं है। -3 एक ऑड नंबर है, 4 एक इवन नंबर है, तो इससे ज़्यादा इसका कोई भी कॉमन डिवीज़र नहीं है 1 को छोड़कर, और इसका डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव है, इसलिए स्टैंडर्ड फॉर्म को ये सेटिस्फाई करता है। ओके, मूविंग अहेड we have one example that express -33 by -44 in standard form. Okay, -33 by -44, what is it? सबसे पहले आप देखिए -44 क्या है, डिनोमिनेटर है और वो नेगेटिव है। अभी आपने पढ़ा था कि डिनोमिनेटर को पॉजिटिव कराना होगा, तो आप क्या करिएगा, ऊपर और नीचे -1 से इंटू कर दीजिए, -33/44 हो जाएगा। अब आप खुद देखिए -33 और 44 का कोई कॉमन डिवीज़र है, कोई ऐसा नंबर है जो इन दोनों को काट सकता है? याद करिए 11 के टेबल में 33 और 44 दोनों आता है, इसलिए अगर इसको 11 से डिवाइड किया जाए, देखिए यहाँ प्रोसेस में किया भी हुआ है, इसको 11 से डिवाइड किया भी गया है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ ड्रॉ करके। यहाँ पर इस वाले लाइन में देखिए -33/44 को यहाँ पर 11 से डिवाइड किया गया और ये नंबर क्या बन गया, -3/4। अब देखिए -3/4 पूरी तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म में रहेगा, क्योंकि ये अब -3/4 हो गया। 3 एक ऐसी ऑड नंबर है, 4 इवन नंबर है, इससे ये कटेगा नहीं, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। प्रॉपर्टी नंबर 3, लेट a/b and c/d be two rational number, then a/b is equals to c/d and a into d is equals to b into c. ओके, इसका कहना है कि अगर a/b और c/d दो रेशनल नंबर है और दोनों आपस में इक्वल है, तो a into d और b into c भी बराबर होगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, समझ लीजिए कि 3/4, वो एक मिनट मैं कलर चेंज कर देता हूँ। समझ लीजिए 3/4 नहीं आपको दिया जाए, ठीक है, 3/4, और ये आपका बराबर हो जाए 2/3 से मैं इसे बराबर कर देता हूँ, ठीक है। अगर ये दोनों रेशनल नंबर आपस में बराबर है, इसका मतलब क्या होगा कि 3 × 3 बराबर होगा 4 × 2 के, ठीक है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। और ऐसा क्वेश्चंस भी आता है, अगर जैसे आपको ये समझ में नहीं आया तो आपको क्या बोलेगा ना, क्वेश्चंस आएगा कि x का वैल्यू बोलेगा कि कोई अननोन दे देगा चारों में से और बोलेगा उसका वैल्यू फाइंड कर। जैसे एग्जांपल देता हूँ, 3/4 होगा और इसको बराबर कर देगा 2/x से और बोला जाएगा कि x का वैल्यू फाइंड करिए। तो आप x का वैल्यू कैसे फाइंड करिएगा, यही प्रॉपर्टी नंबर 3 ला के अभी आपने पढ़ा था कि अभी आपने क्या पढ़ा है प्रॉपर्टी नंबर 3 में, कि जब ये दोनों बराबर होगा तो ये इधर इंटू होता है और ये इधर इंटू होता है, और जब ये दोनों इंटू होता है तो दोनों फिर भी बराबर होता है, ठीक है। अभी आपने ये चीज़ पढ़ा है, तब बस इसको आपको लगाना है। ये कितना हो जाएगा, 3x = 8, 4 × 2 8 होता है, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 8/3। ये प्रॉपर्टी नंबर 3 से ऐसा क्वेश्चन आपको सॉल्व करने को मिलेगा, इसलिए प्रॉपर्टी नंबर 3 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप एक बार फिर से ध्यान से देख लें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ये प्रॉपर्टी तो आसान है। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो रेशनल नंबर में पढ़ना है, दैट इज़ कंपैरिजन ऑफ अ रेशनल नंबर। हाउ व्हाट इज़ कंपैरिजन ऑफ अ रेशनल नंबर, एनीबॉडी कैन अंडरस्टैंड हाउ व्हाट इज़ कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर। कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर करने के लिए बहुत सारा जनरल मेथड होता है, लेकिन एक जनरल मेथड जो हमें RS वाला किताब में पढ़ना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला क्या है, कंपैरिजन करने के लिए किसी भी नंबर को आपको सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा। यू हैव द फर्स्ट स्टेप टू डू दैट, कन्वर्ट द नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अभी आपने स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ा था, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था कि दो नंबर का कोई कॉमन डिवीजर नहीं होना चाहिए और नीचे का डिनोमिनेटर पॉजिटिव होना चाहिए। देखिए एक जो नीचे एग्जांपल दिया हुआ है, अब विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज़ ग्रेटर, ये वाला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज़ ग्रेटर। तो आपको देखिए जो 3/-4 है, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, आप खुद चेक कर लो। 3/-4 स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, यहाँ देखो। जब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे। अभी बताइए कैसे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे, क्योंकि माइनस तो नीचे रहेगा नहीं, डिनोमिनेटर तो पॉजिटिव होना चाहिए। तो क्या करेंगे हम लोग, इसको -1 से ऊपर और नीचे इंटू कर देंगे, जैसा देखिए इस प्रोसेस में किया भी गया है। मैं आपको अभी दिखाता हूँ, यहाँ वाला प्रोसेस में देखिए -1 से ऊपर और -1 से नीचे इंटू किया गया, तो ये नंबर क्या बन गया, -3/4 बन गया। और दूसरा नंबर देखिए, अब तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया ना। दूसरा नंबर देखिए -5/6। चलिए इसका तो डिनोमिनेटर पॉजिटिव है स्टैंडर्ड फॉर्म में, पहला स्टेप खत्म हो गया। दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप है कि जो दोनों डिनोमिनेटर्स होते हैं उनके LCM आपको लेने हैं। जो डिनोमिनेटर है उनका LCM लेना है, तो उनका LCM कैसे लीजिएगा, देखिए ये वाला यहाँ पे आपका दिया हुआ है डिनोमिनेटर कितना 6 दिया हुआ है, और दूसरा का देखिए इसका डिनोमिनेटर है 4, इसका डिनोमिनेटर है 6, तो 6 और 4 का LCM लीजिए। अकॉर्डिंग टू बुक आपको दिख रहा होगा द LCM ऑफ 6 and 4 इज़ 12 ले लीजिए।
अब 3/4 को आपको 12 के फॉर्म में लिखना है, मीन्स डिनोमिनेटर में आपको 12 आ जाना चाहिए। तो क्या करिएगा, 4 को 3 से इंटू करिएगा। और अब यह प्रॉपर्टी पड़ेगी, ये रेशनल नंबर कब चेंज नहीं होगा, जिस नंबर से नीचे इंटू करेंगे उसी नंबर से ऊपर भी इंटू करेंगे, नहीं तो रेशनल नंबर चेंज हो जाएगा। तो आपका क्या तरीका है कि आपको रेशनल नंबर को चेंज नहीं करना है। सो यू हैव टू मल्टीप्लाई विद द सेम नंबर इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ। सो व्हाट द नंबर बिकम्स -9/12 एंड द सेकंड वन -5/6। इसमें भी आपको 12 नीचे लाना है, तो नीचे डिनोमिनेटर 6 है, 12 लाने के लिए आपको 2 से इंटू करना पड़ेगा। तो अगर आप डिनोमिनेटर में 2 से इंटू करिएगा तो न्यूमरेटर में भी 2 से इंटू करिएगा, तो ये क्या बन गया -10/12। आपका थर्ड स्टेप भी खत्म हो गया। आपका इस स्टेप में आपको समझना है, देखिए डिनोमिनेटर तो दोनों का इक्वल हो गया, तो आपको नीचे वाले नंबर से तो मतलब ही नहीं रहा, आपको बस अब ऊपर वाला नंबर देखना है। तो आप खुद देख लो, ऊपर वाले नंबर में -9 और -10 में कौन सा बड़ा होता है। आप नेगेटिव साइड जाते हैं तो छोटा नंबर बड़ा होने लगता है, ठीक है। तो यहाँ -9 बड़ा हो गया -10 से। अब याद करिए -9 कहाँ से आया था, -9/12 से आया था। तो अगला स्टेप में आप लिखिए -9/12 बड़ा हो गया -10/12 से। अब फिर अब याद करिए -9/12 कहाँ से आया था, कहाँ से -9/12 को थोड़ा और छोटा करिए, कहाँ से आया था, -3/4 से आया था। बताइए, याद आ रहा है। यहाँ यही नंबर को ना आप थोड़ा इक्वल करके -9/12 लिखे हैं, तो इसी नंबर ना 9/12 के बराबर होगा, तो इसके जगह पे हम -3/4 लिख दें। सिमिलरली -10/12 कहाँ से आया था, -5/6 से आया था, तो इसके जगह -5/6 लिख दें। और अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, जो क्वेश्चन दिया था अब उसी फॉर्म में आप उसको वापस से लिख दो। तो -3/4 किसके बराबर था, 3/-4 के, और -5/6 तो पहले से ही था। इस तरह से -3/4 बड़ा हो गया -5/6 से, ठीक है। बहुत आसान था। अगला स्टेप में भी आपको यही करना है, लेकिन इस बार क्या है ना, अब आपको कंपैरिजन करना नहीं है, अब आपको उसको अरेंज करना है, जैसे असेंडिंग में या डिसेंडिंग में, वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिफर करते रहेगा। कभी रहेगा कि असेंडिंग में करो, कहीं रहता है डिसेंडिंग में करो। तो इसमें भी आपका पहला स्टेप वही है, सबसे पहले सारे नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दो। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद अभी आपको सब सारा का सारा स्टेप बताया गया है। पहला स्टेप है स्टैंडर्ड फॉर्म, दूसरा स्टेप है एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर्स, तीसरा स्टेप है डिनोमिनेटर का जो एलसीएम आएगा उस फॉर्म में सारा नंबर को लिख देना है, और चौथा जब आपका डिनोमिनेटर इक्वल हो जाएगा तो न्यूमरेटर को आपको एडजस्ट करना है और इक्वालिटी में आपको देखना है कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। ओके, चलिए मैं आपको ये वाला क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देता हूँ, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सी -3/5 इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन देखिए 7/-10, क्या 7/-10 स्टैंडर्ड फॉर्म में है, बताइए। यहाँ पे आपका डिनोमिनेटर नेगेटिव है, तो आप सबसे पहला काम आपको क्या दिखना चाहिए कि आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना होगा। तो क्या करिएगा, पॉजिटिव करने के लिए -1 से ऊपर और नीचे इंटू कर दीजिएगा। इंटू कर दीजिए -1 से, ये नंबर क्या बन गया, -7/10 बन गया। अब ये नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। अब आपको तीसरा स्टेप क्या है, देखिए ये सारा नंबर है जो यहाँ पे है। आपका तीसरा स्टेप क्या है कि आपको एलसीएम लेना है सबका, 5, 10 और 8 का। तो 5, 10 और 8 का एलसीएम कितना आया, 40 आ गया। तो आपको 40 के टर्म्स में सबको लिख देना है। ये देखिए -3/5 को 40 के टर्म्स में लिखा गया है, तो -3/5 को जब 40 के टर्म्स में लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, -24/40। ये देखिए -7/10 को लिखा गया 40 के टर्म्स में, तो कैसे लिखते हैं, टर्म्स में लिखना मीन्स क्या है, डिनोमिनेटर को 40 में चेंज कर देना है। आप प्रॉपर्टी नंबर 1 आप बहुत अच्छे से याद कर लो, प्रॉपर्टी नंबर 1 बहुत जगह लगने वाला है। और प्रॉपर्टी नंबर 2 ये लगता है जो डिवाइड करने वाला केस था स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए, इसलिए आप याद कर लो उस चीज़ को। दूसरा में देखिए डिनोमिनेटर, देखिए आपको मैं फिर से बताता हूँ, -3/5 था, उसको 40 में चेंज करना है। तो आपको नीचे डिनोमिनेटर में क्या लाना है, 40 लाना है। यू हैव टू कम 40 इन द डिनोमिनेटर। तो जब डिनोमिनेटर में 40 लाना है तो 5 को कितने से इंटू करने पे 40 आता है, आप बताइए। 8 से आता है। और अभी आप प्रॉपर्टी नंबर 1 पढ़े हैं कि डिनोमिनेटर 40 आएगा जब नीचे आप 8 से इंटू करेंगे। तो जब नीचे 8 से इंटू करेंगे तो ऊपर भी कितने से इंटू करना पड़ेगा, 8 से, नहीं तो आपका तो रेशनल नंबर ही बदल जाएगा। लेकिन जब सेम नंबर से ऊपर नीचे इंटू करेंगे तो रेशनल नंबर नहीं बदलेगा, इसलिए आप ऊपर नीचे -8 से इंटू कर दीजिए। क्या बन गया, -24/40। सिमिलरली -7/10 को चेंज करना है, उसको भी नीचे 40 लाना है। तो 10 को कितना से इंटू करना पड़ेगा, 4 से। तो -7 को भी कितना से इंटू करेंगे, 4 से। सिमिलरली -5/8 को। अब देखिए आपका सारा नंबर ऐसे आ गया 40 के टर्म्स में। ये देखिए -24/40, -28/40 और तीसरा नंबर -25/40। अब देखिए आपका नीचे में तो 40 40 40 आ गया, नंबर को आपसे कोई नहीं, तो आपस में बराबर है। आप बस ऊपर वाला नंबर देखो, पहला में -24, फिर -25 और -28। तो आप खुद देखिए नेगेटिव साइड में छोटा नंबर बड़ा होता है, आपको पता होगा। -1 बड़ा हो जाता है -2 से, समझ में आया। तो यहाँ पे जो सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ा कहलाएगा। तो सबसे बड़ा कौन सा होगा, -24, फिर क्या होगा -25, फिर क्या होगा -28। और ये देखिए नीचे में किया भी गया, ये देखिए
-28 सबसे छोटा हो गया, -25 उससे बड़ा और सबसे बड़ा -24। अब फिर आपको वही चीज़, ये आया कहाँ से था, तो -28 याद करिए, -28 आया है 7/10 से, तो 7/10। -25 कहाँ से आया है, देखिए 5/8 से, तो 5/8। और -24 40 कहाँ से आया है, 3/5 से, तो यहाँ 3/5। ठीक है, ओके। अब जैसा आपको क्वेश्चन दिया गया था वैसा कर दीजिए। आपका -7/10 तो दिया नहीं गया था, -7/10 था नहीं था, नीचे में था 7/-10 था, तो आप 7/-10 कर दो उसको, -5/8 -3/5 तो वैसे ही था, तो उसको लाइन से लिख दीजिए। ठीक है, आपका ये वाला एक्सरसाइज ख़त्म हो गया, और इस थ्योरी पार्ट से ये सारा एक्सरसाइज 1A आपका बन जाएगा। आई विल प्रोवाइड यू ऑल द क्वेश्चन अलॉन्ग विद द आंसर्स इन PDF फॉर्म, and you can do all the questions. If you have any problem or you want any suggestions to for the online class, आपको ऑनलाइन क्लास को लेके कोई प्रॉब्लम हो, कुछ सजेशन देना चाहते हो, या कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर करें, और प्लीज़ 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 अपना अटेंडेंस रोज़ के रोज़ बनाएं। हमारा ऑनलाइन क्लास द अचीवमेंट पब्लिक स्कूल इज़ कंटिन्यूइंग to do your all chapters, and we will not stop your study even it is COVID-19 epidemic, then also we will continue to do your studies. So please, from your side, you also do some struggle, and please attend every day our online class. We will upload one video every day of this chapter of math, science, etc., all the subjects.